Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we will do the unit number 4, chapter number 4 of 9th class physics. We will do the important questions. ठीक है, अब हम important questions करेंगे and these important questions are from page number 86 to page number 92. From 86 to 92 हम ये important questions करेंगे, side boxes करेंगे या mini exercise करेंगे. ठीक है, now let's start from the first question. For this, first of all, you have to open your book so that we can view the question. Now we have this first question, this side box. अब basically इसमें क्या बताया हुआ है that it should be noted that head to tail rule is used to add any number of forces. ये तो हमें पता है कि अगर more than one force हो 2, 3, 4, 5 then we will add the head to tail rule to add the different types of forces. ठीक है, now the vector representing the resultant force, उन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आता है that is the resultant. ठीक है, जैसे ये आपको फिगर में नजर आ रहा है दिस वन, ये जो रेड कलर का आपको वेक्टर नजर आ रहा है ये एक रिजल्टेंट फोर्स है. अब बेसिकली ये रिजल्टेंट फोर्स आपको बता क्या रहा है, what this shows the direction and magnitude of the resultant. ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताता है. ठीक है, तो ये तो एक छोटे से हमने का साइड बॉक्स था, मैंने कहा डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स या व्हाट द रिजल्टेंट फोर्स गिव्स यू व्हाट, ये आपको किस चीज के बारे में बताता है, व्हाट इंफॉर्मेशन द रिजल्टेंट फोर्स गिव्स. तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. ये रिजल्टेंट जो हमारे पास आया है ये हमें रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या डायरेक्शन है, 30 डिग्री 40 डिग्री whatever the direction it has. Right, now we will move towards the next question. जी अहमद नासिर बेटा, you can read it. अहमद आप पढ़े बेटा. The ratios between any of its two sides of a right angle triangle are given certain names such as sine, cosine, etc. Consider right angle triangle CAB having angle having angle theta at A. ठीक है, गुड. At A, sine theta equals to perpendicular over hypotenuse equals to BC over AB. Cos theta equals to base over hypotenuse equals to AC over AB. Tan theta equals to perpendicular over base equals to BC over AC. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये तो आपका हो गया जो आपने रीड आउट किया. ठीक है, नाउ व्हाट द इंफॉर्मेशन व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस. इसमें सिंपल एज यू हैव स्टडीड इन द 8th class maths that this is a right angle triangle and there are three sides of a right angle triangle, base, perpendicular and hypotenuse. And when we show the relationship of any two sides of a right triangle, अगर हमने कोई भी दो साइड्स की रिलेशन शो करते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक कुछ टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. ठीक है, जिसे हम tan बोलते हैं. बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होगा तो वो cos थीटा बन जाएगा. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होगा तो दैट इज sin थीटा, और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा तो वो tan थीटा होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो आप ये पूरा एज इट इज इसी तरह से लिखेंगे. ठीक है, और जिसमें आप बताएंगे sin थीटा ये है, cos थीटा ये और tan थीटा ये है. ठीक है, now we will move towards the next question. Okay, now in the next side box is on page number 89, that is this one. ठीक है, now this one is that, start reading. In a right angle triangle, length of base is 4 cm and its perpendicular is 3 cm. Find the length of hypotenuse sin theta, cos theta, tan theta. Good, very good. Can you brief me कि how can you find out this, कैसे find out कर सकते हैं आप? Yes, ma'am. जी बताएंगे, थोड़ा सा बताएं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. Yes, ma'am. The length of hypotenuse. जी. Then to find sin theta, we use formula perpendicular by
hypotenuse, Very for good. cos theta base by hypotenuse, Very and good. tan theta perpendicular by base. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो दिस इज आपके पास ये एक्सरसाइज आपने इस तरह से. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. क्या था सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, and to find out the hypotenuse ultimately you have to use the Pythagoras theorem, that is hypotenuse square perpendicular square plus base square. You will put the values of these, so you will get the answer 5 of the hypotenuse. ठीक है? Then sin theta perpendicular over base, cos theta base over hypotenuse, and tan theta is perpendicular over base. So this is the solution of that side box. ठीक है? Now we will move towards. Okay, this question, quick quiz. Name some more objects that work by turning effect of the forces. ठीक है, हमारी बुक में जो दिया हुआ है that is opening and closing of the door, opening and closing of the tab, and the knob of the or the handle of the door. तो ये आपके पास क्या है? टर्निंग इफेक्ट है. इसके अलावा कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल लाइक द मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. द मूवमेंट ऑफ द व्हील, द मूवमेंट ऑफ योर आर्म अराउंड दी एल्बो, एल्बो के अराउंड आपके पास जब आपका हाथ, आपका जो बाजू है वो मूव करता है, तो दैट इज अ टर्निंग इफेक्ट. ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी लिड ऑफ दी बॉटल, बॉटल की लिड आप जब उसका कैप ओपन या क्लोज करते हैं वहां पे भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग द नट विद द हेल्प ऑफ अ स्पैनर, वो आपके पास टर्निंग इफेक्ट होता है. तो ये 3 to 4 एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नंबर 1 इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लिड ऑफ द बॉटल, opening and closing the nut with the help of a spanner, movement of your arm around the elbow. Next आपके पास है movement of the steering wheel, movement of the wheel of a bicycle or wheel of any vehicle. ठीक है. तो ये तमाम आपके पास इसकी एग्जांपल आ सकती है. इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल है जिसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है. Now on page number 92, this is a mini exercise. ठीक है. And we will use a formula of torque here, right? अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चंस गिवन है और ऊपर एक डाटा गिवन है. आपने उस डाटा को यूज करते हुए ये दोनों पार्ट सॉल्व करने. ठीक है. अब डाटा आपके पास क्या है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि साथ साथ मैं क्वेश्चन भी साथ साथ रीड करूंगी. ठीक है. आपको जो ऊपर क्वेश्चन गिवन था उसमें ये गिवन था, लेट वी हैव अ स्पैनर एंड वी विल अप्लाई द फोर्स ऑफ 150 न्यूटन हैविंग द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, दैट इज 0.1 मीटर. देन अच्छा, फोर्स भी है, मोमेंट आर्म भी है, यानी लेंथ भी है. तो अल्टीमेटली थर्ड आपके पास जो टर्म होगी दैट इज द टॉर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द टॉर्क बाय यूजिंग द फार्मूला एफएल. ये आपके पास टॉर्क एक आ गई. ठीक है. अब ये जो आपने टॉर्क फाइंड आउट की है ना, ये आपने यूज करना है इन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट. दोनों पार्ट्स में आपने ये वाली टॉर्क यूज करनी है. लेट्स सपोज इसका आंसर 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 10 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आपने इन दोनों पार्ट्स में यूज करना है. अब क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये था कि इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 150 की जगह अगर हम उसके फोर्स 60 न्यूटन लगाते हैं, तो अब बताएं कि हमारे पास लेंथ ऑफ द स्पैनर कितनी होनी चाहिए ताकि इजीली टॉर्क प्रोड्यूस हो सके. तो टॉर्क इज इक्वल टू F1 L1. आपने L फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय F1. अब देखिए आपके पास F1 तो है, लेकिन इस डाटा में आपके पास टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क आप ये वाला यूज करेंगे. ठीक है. टॉर्क जो आपने फाइंड आउट किया ऊपर डाटा में वो टॉर्क 10 है, 2.5 है, यानी 10 डिवाइडेड बाय F1 जो भी होगा 60 हो जाएगा. ठीक है. नाउ इन द सेकंड पार्ट, if the length of the spanner is 60 centimeter means 6 centimeter, 0.06 meter, how much force should we apply? हमारे पास कितनी फोर्स अब होनी चाहिए? तो उसके लिए अगेन यूजिंग द फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू F2 L2, F2 इज इक्वल टू टॉर्क बाय L2. L2 आपके पास ये देखें है 0.06, and for torque again you will use this torque which you have find in the given data. जो आपके पास ऊपर डाटा गिवन थे उसमें आपने टॉर्क जो फाइंड आउट की थी वो. ठीक है. तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाए. होप सो आपको समझ आ गया होगा. स्टार्ट बेटा. Yes, ma'am. Two children are sitting on the seesaw.
such that they cannot swing. What is the net torque in this situation? एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी रीड आउट करें. Okay, ma'am. Can a small child play with a fat child on the seesaw? Explain how. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, ये तो हो गया. Okay, student, this is the answer of that quick quiz. That can a small child play with a fat child on the seesaw? As we have discussed that torque is produced in it. ठीक है, torque इसके अंदर produce होती है और there are two types of torque, clockwise and anti-clockwise torque. ठीक है, तो हम किस तरह से fat and small child एक ही seesaw पे बैठ के play कर सकते हैं? Yes, a small child can play with a fat child on a seesaw when the fat child is sitting closer to the edge of the seat. जो fat child होगा, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं टॉर्क में, फोर्स एंड मोमेंट आर्म. अगर फोर्स ज्यादा है तो हमें मोमेंट आर्म को डिक्रीज करना है, और अगर फोर्स कम है तो मोमेंट आर्म हम इंक्रीज करेंगे. तो इन केस ऑफ फैट चाइल्ड, क्योंकि वहां पे उसका वेट ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, तो हम उसका मोमेंट आर्म डिक्रीज करेंगे. मोमेंट आर्म कैसे डिक्रीज करेंगे? बाय मूविंग दैट चाइल्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो हमने उसका फ्लो यानी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब बैठेगा. अब आपके पास क्या होगा? इफ द मोमेंट आर्म विल बिकम स्मॉल एंड प्रोड्यूसेस लेस टॉर्क. ठीक है, इन दिस वे बोथ द टॉर्क्स बिकम इक्वल एंड चिल्ड्रन कैन प्ले. तो आपके पास वो दोनों इजीली खेल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, if two children are sitting on the seesaw and they cannot swing, so how much net torque? So then net torque is zero because clockwise and anti-clockwise torque becomes equal and cancel each other's effect. तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और वो दोनों स्विंग नहीं कर सकते. Right? So this is the answer of this question. Now there are some more questions related to this topic. Let's suppose the question is this. These are some conceptual questions other than your book. How can we increase the torque by keeping the force constant? लेकिन टॉर्क हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द टॉर्क. टॉर्क में दो चीजें होती हैं, फोर्स एंड मोमेंट आर्म. अगर फॉर्मूला हम देखें, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल. फोर्स by increasing the force, torque is also increased. By increasing the length mean moment arm, torque is also increased. अब उन्होंने कहा कि if we keep the force constant, अगर हम ये force constant रख देते हैं, यानी force को आपके पास 10 है, हम 10 ही रहने दें, तो आपके पास आप कैसे टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हो? तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी लेंथ है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लेंथ को इंक्रीज करके टॉर्क increase कर सकते हैं, because length and torque, moment arm and torque are directly proportional to each other. So look at the answer. When we increase the torque by keeping the force constant, by increasing the perpendicular distance. Perpendicular distance means by increasing the moment arm. Moment arm को increase करके हम उसकी torque को increase कर सकते हैं. Right? Next question, define the clockwise and anti-clockwise moment. ठीक है? The torque or moment of the force acting in the clockwise direction is called clockwise moment. ऐसी टॉर्क या ऐसा मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगी. ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है? अ फोर्स यूज्ड टू टाइटन अ नट प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज मोमेंट. और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज की ही डेफिनेशन होगी, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. और इसकी एग्जांपल क्या? फोर्स यूज टू लूजन द और लूज अ नट प्रोड्यूसेस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है. नाउ दिस वन, what will be the effect on the magnitude of the torque if force remains same but the moment arm is doubled? ये वो प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है. उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास टॉर्क है F क्रॉस L, ठीक है, और हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, F इज इक्वल टू F, बट इफ वी डबल द मोमेंट आर्म, अगर हम मोमेंट आर्म को डबल कर देते हैं, यानी L की बजाय वो 2L है, यानी अगर पहले 10 थी भी 20 हो गई है. ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टॉर्क? टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस आपको नजर आ रहा है कि अगर आप 2L लगा रहे हो तो देखो 2 को अगर आप बाहर रख लेते हो, कॉमन ले लेते हो F क्रॉस L, तो ये F क्रॉस L जो है वो आपके पास टॉर्क है और ये उसका डबल हो गया, यानी बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म, बाय डबलिंग द मोमेंट आर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बिकम्स डबल, वो भी डबल हो जाएगा. अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसको ट्रिपल कर दिया है, 3L हो जाता,
तो 3 टाइम्स एफ क्रॉस एल, यानी वो आपके पास वो भी ट्रिपल हो जाता। अगर हम कहते हैं हम मोमेंट आर्म को इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। सेम इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है, इफ द मोमेंट आर्म रिमेन कांस्टेंट एंड द फोर्स इज डबल्ड, तो फोर्स के साथ 2L आ जाए तो वो भी सेम रहेगा, तो तब भी, यानी फोर्स को हम डबल कर रहे हैं तब भी टॉर्क डबल हो जाएगा, हम मोमेंट आर्म को डबल कर रहे हैं या उसको एक प्रॉपर रेशियो के साथ इंक्रीज कर रहे हैं तो टॉर्क भी इंक्रीज होगी उसी रेशियो से, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, राइट। So this is our important questions of unit number 4 till moment, principle of movement तक ये हमारे कुछ important questions थे। In case of any query, you can ask me the question. Have a nice day. Thank you so much. Allah Hafiz to all of you. Allah Hafiz, ma'am.